Assalamu alaikum, grade 8. How are you? Faiza Nadeem is right in front of you with your English lesson. So let me know it first that how are you doing in your school and at your home? I hope you are attentive during lessons. I hope and I wish and I pray that all of you are healthy and safe. What we are going to do today? We are going to start the grammar tree and we are going to do its first unit. Unit 1. And what is Unit 1 all about? Come with me. We'll walk over slowly and gradually towards Unit 1. It was a long walk, isn't it? So we are finally here with our Unit 1. Unit 1 of the grammar tree that is starting from page number 1 and ending till page number 7. इस series का first lecture is in front of you, which is the most common topic that we have been doing since KG. I know, but in grade 8, still at times you are unable to identify nouns. What are nouns? In layman's definition, nouns are the naming words. ठीक है? जितने भी नाम होते हैं वो सब nouns होते हैं. लेकिन अगर हम इसकी literal definition देखें तो जो आप बचपन से करते आ रहे हो वो literal definition क्या करते हो? आप ये करते हो कि the noun is the name of a person, place, animal or thing. Right? लेकिन जो इसकी actual definition है, that is written on the board, which I am going to read for you. Nouns are the words denoting things and people. For example, house, tree, child, water, etc. Denoting, pointing it out. ठीक है? And they may also denote abstract ideas or feelings. For example, truth, honesty, bravery, and the examples on the board, happiness, right? So they are all the names of certain things. Whether it's an idea, it's a feeling, it's something that you can see or touch, something that you can count, something that you cannot count. So everything that is present in the face of the earth is a noun. अब मैंने example sentences लिखे हुए हैं 3 बोर्ड पे. मैं आपके साथ example sentences discuss करूंगी and then we will step up to the next level of nouns. ठीक है? तो examples ये हैं. My mother gave me a bouquet of red carnations on my birthday. इनमें noun कौन से हैं? Mother noun है? कौन सा noun है? Common noun है? Proper noun है? Proper noun नहीं है. Common noun है. Bouquet क्या है? Collections of flower in a specific arrangement. ये कौन सा noun है? Collective noun है. Carnations क्या है? Proper noun है? Common noun है? Common noun है एक तरह के flowers का. और birthday क्या है? Birthday is the special day on which you were born. So it's also a common noun. इसी तरह Kathy fed bananas to the elephants at the zoo. इसमें noun क्या है? Kathy. Common noun है? Proper noun है? Proper noun है. Capital से है. एक specific लड़की का नाम है. Bananas noun है. Bananas कौन सा noun है? Common noun है. एक specific type of fruit का नाम है जो बहुत पसंद होता है monkeys को भी और elephants को भी. Elephants are also a common noun because they are one specific kind of animals. And then zoo is a collective noun, a place where you keep animals, right? The teacher asked the students to leave their books in a pile on her table.
टीचर क्या है? कॉमन नाउन है. इट इज रेफर टू अ पर्सन हु टीचेस यू इन द क्लास. स्टूडेंट्स क्या है? कलेक्टिव नाउन है. वो जो सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो सारे हैं. स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है. ठीक है. नोटबुक्स कॉमन नाउन है. आपकी नोटबुक्स जिसमें आप अपना काम लिखते हो वो सब कॉमन नाउन है. पाइल क्या है? पाइल कलेक्टिव नाउन है. एक के ऊपर एक नोटबुक रखते हो आप, एक जैसी चीजें एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हो, वो आपका कलेक्टिव नाउन है. और टेबल क्या है बेटे? कभी टेबल देखी है? You know that what is a table? It's a common noun. So we have done the definition of the nouns and we have picked out nouns from a few sentences that were in your exercise A on page number 1. ठीक है? We have done that as well. Now let's move on to the types of nouns. जी बेटा, on the top of the board it is written types of nouns. You have done the types of nouns multiple times in your previous classes, but we are going to redo it because we want to refresh the concept and we want to revise all the ideas that we have done so far. So the first type of noun that I am going to discuss today is the common noun. हर जगह, हर वक्त, हर लम्हा, हर second we come across something that is a common noun. Common noun क्या है? Common noun is a person or a thing of the same kind. This board is a common noun. The ink is a common noun. This board pen is a common noun, right? My dress is a common noun. My rings are the common nouns, right? So these are all common nouns, but I am not a common noun, alright? I have a name, a specific name, right? And I am a proper noun to be written in capital letters. Alright, जैसे girl है, dog है, country है, these are all common nouns. And then we come to the proper nouns, जो proper किसी नाम हो, जगह के या जानवर के या फिर इंसानों के. ठीक है? जैसे names of a particular place or a person and they always start with a capital letter. Faiza Nadeem is a proper noun. Remember this, alright? Allied schools is a proper noun. So they are all supposed to start with a capital letter and they are the proper nouns. उसके बाद आ जाते हैं आपके countable nouns. Countable nouns कौन से होते हैं? Things we can count using numbers. They can be singular or plurals and we can use determiners. ठीक है? यानी अ और एन आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे the boxes, कितने boxes थे? A dozen boxes. 3 board pens. These are 3 number. 3 board markers. ठीक है? A pencil. ठीक है? An umbrella. A wristwatch. 2 rings. So these are something that you can count, right? Then we move on to the uncountable nouns. अब कुछ चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो बच्चे. कौन सी चीजें हैं वो? वो है things we cannot count using numbers. They do not have a plural form. We do not use a or an. A और an हम use करते हैं singular noun के लिए. ठीक है? अनकाउंटेबल के लिए हम अ और एन नहीं यूज कर सकते. आप अपने सर के बाल गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो. ठीक है? सो हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन. कैन यू काउंट द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? नहीं. इवन आपका जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो रेन कैलकुलेट करता है पर क्यूबिक मीटर कितना पानी गिरा था उसके अकॉर्डिंगली. हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को काउंट नहीं कर सकते. वाटर अनकाउंटेबल नाउन है. हम आसमान पे स्काई पे स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते. स्टार्स आर अनकाउंटेबल नाउन. आई एम स्टैंडिंग राइट हियर. देयर इज ऑक्सीजन ऑल अराउंड मी. देयर इज ऑक्सीजन ऑल अराउंड यू व्हाइल यू आर सिटिंग डाउन एंड वॉचिंग मी अप.
But can you count the oxygen that surrounds me and you? No. तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है. क्लियर हुआ आपको? एग्जाम्पल भी दी हुई है मैंने. ऑक्सीजन, मनी, वाटर, हेयर, ऑल अनकाउंटेबल नाउन. आई हैव अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, व्हेन यू से मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी. आई हैव मनी इन माई बैंक. हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर बैंक? आई हैव 20,000 रुपीज. तो रुपीस को आप काउंट कर सकते हो, डॉलर्स को आप काउंट कर सकते हो, यूरो को आप काउंट कर सकते हो, बट व्हेन यू आर रेफरिंग टू मनी, दैट्स अनकाउंटेबल. यू कैन नॉट से आई हैव 20,000 मनी. कौन सी मनी भाई? समझ आ गया ना? नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. जैसे आपकी स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, तो आप स्टेयर्स के लिए क्या यूज करते हो? अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. ठीक है, बीज आ रही हैं आपकी, हनी बीज हैं, तो आप क्या करते हो? अ स्वॉर्म ऑफ बीज. पूरा का पूरा रेवड़ गल्ला जा रहा है, गाय का, बकरियों का, किसी का भी, तो आप क्या कहते हो? हर्ड ऑफ कैटल. ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले बोर्ड के ऊपर पाइल ऑफ बुक्स पढ़ा था, यानी बुक्स एक दूसरे के ऊपर. बुक्स थी कि नोटबुक्स थी? आई थिंक नोटबुक्स थी, है ना? तो वो नोटबुक्स थी एक दूसरे के ऊपर पाइल में पड़ी हुई. वो क्या था? पाइल. कलेक्टिव नाउन. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन. द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज द मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन कौन से होते हैं? मटीरियल नाउन्स वो होते हैं जो आप किसी भी सब्सटेंस को या मटेरियल्स को बनाने में यूज करते हैं. आपकी आयरन, आपकी कॉपर, आपका प्लास्टिक, ऑल दीज आर मटेरियल नाउन्स which are used to construct things. Concrete, cement, ठीक है, all these things they are used up to build new things. ठीक है, flour, eggs, right? So these are all the materials which are used to construct new things. उसके बाद आ जाते हैं आपके कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स वो कौन से होते हैं? कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो आप दो नाउन्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं, जैसे बटर और फ्लाई. ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई. ब्लैक एंड बोर्ड, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लैक बोर्ड. वाइट एंड बोर्ड, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? वाइट बोर्ड. इसी तरह आर्म, योर आर्म एंड चेयर, कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? आर्म चेयर. राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज द कंपाउंड नाउन्स. अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो ये है आपको रिविजन करना कि आपके जो कॉमन नाउन्स हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. कौन से? एक होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स, एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स वो चीजें होती हैं जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि ये मेरे बोर्ड मार्कर्स, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, दीज आर ऑल कॉन्क्रीट नाउन्स. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी मौजूद होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? ये जो मेरे दिमाग में इस वक्त आइडिया है आपको पढ़ाने के लिए, क्या आप उसको देख सकते हो मेरे आइडिया को? नहीं. क्या आप मेरे आइडिया को टच कर सकते हो? नहीं. क्या आप मेरे आइडिया को फील कर सकते हो? नहीं. तो ये कौन सा नाउन हुआ? ये हुआ बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? वो वाले होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, और वो किसी भी क्वालिटी या स्टेट या कॉन्सेप्ट का नाम होते हैं. यू वेंट टू द नॉर्दर्न एरियाज, वहां जाके आपने बहुत खूबसूरत सीनरीज देखी. ठीक है, और वो सीनरीज देख के आपको बहुत मजा आया और आप कहते हो वापस आके अपने फ्रेंड को, आई हैड अ लॉट ऑफ ब्लिस और कंटेंट और आई वॉज इलेटेड, एक्सिलरेटेड व्हेन आई लुक्ड एट द ब्यूटी अराउंड मी. अब वो बंदा
क्या आपकी ये जो फीलिंग ऑफ ब्लिस थी, फीलिंग ऑफ कंटेंट थी, फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन थी, या फीलिंग ऑफ बीइंग इलेटेड थी, देख सकता है? नहीं। क्या आप उसको ब्यूटी डिस्क्राइब कर सकते हो कि कौन सी ब्यूटी थी जिसने आपको दीवाना कर दिया? नहीं। ठीक है, तो ये सब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको कि आप ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। ये एक्सरसाइज बी आपसे क्या कह रही है? ये एक्सरसाइज बी आपसे कह रही है कि जो गिवन सेंटेंसेस हैं उनमें से नाउन को आइडेंटिफाई करें और उनको हाईलाइट करके उनको लेबल करें कि वह कौन सा नाउन है। द शिप along with its crew had been saved। तो इसमें नाउन कौन सा है? जी बिल्कुल, शिप नाउन है। और शिप कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन की कौन सी टाइप है? कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉमन नाउन की कॉन्क्रीट टाइप है। उसके बाद आपका आता है क्रू। क्रू क्या है? क्रू है तमाम लोग जो उधर मौजूद थे, जो शिप पे काम कर रहे थे। तो ये कौन से नाउन हो गए जनाब? ये नाउन हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब आ जाता है आपका द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 848 मीटर्स। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो चलो सबसे पहले हमने सर्कल कर दिया। ये कौन सा हो गया? सबसे आसान हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब माउंट एवरेस्ट जो प्रॉपर नाउन है उसका आप क्या देख रहे हो? हाइट। हाइट को आप सिर्फ फील कर सकते हो बेटा, हाइट को आप ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो। ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीटर्स क्या है? मीटर्स भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आप ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो। द नेशनल म्यूजियम हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ, the last word is on the next board. Let's find out the nouns from this board and then I'm going to move on to the last word. ठीक है, नेशनल म्यूजियम तो सबसे आसान हो गया ना, ये तो हमें कोई मुश्किल ही नहीं है, हमें पता है ये एक स्पेसिफिक म्यूजियम का नाम है। तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, कलेक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो आपने कलेक्ट की हुई हो। जब ग्रुप आ गया तो कौन सा नाउन हो गया? ग्रुप के साथ नाउन हो जाता है बेटा आपका कलेक्टिव नाउन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड। राइट जी बच्चे, द सेंटेंस वाज द नेशनल म्यूजियम हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स क्या है? एक कलेक्शन, आर्ट की चीजें जो उधर मौजूद है। तो ये भी कलेक्शन है, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आ जाता है द ऑडियंस रिसीव्ड द प्ले विद अ थंडरस अपलॉज। ऑडियंस क्या है? नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टुगेदर टू वॉच समथिंग, ये भी आपकी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है प्ले। प्ले इज समथिंग दैट यू कैन सी, एक्शन हो रहा है, चाहे वो स्क्रिप्ट में है चाहे वो परफॉर्मेंस में है। दिस इज योर कॉन्क्रीट नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट टाइप। अपलॉज क्या है? जोर जबरदस्ती की तालियां। तो अपलॉज क्या हो गया? ये भी आपका कॉमन कॉन्क्रीट हो गया। खूब तालियां, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। मॉडर्न बिल्डिंग्स आर मोस्टली मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। बिल्डिंग्स आपका कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन का कौन सा टाइप हो गया? कंक्रीट। ठीक है, लेकिन ये कंक्रीट जिससे आप बिल्डिंग बना रहे हो, ये कौन सा नाउन हुआ? पहले किया था आपने, कौन सा नाउन हुआ? मटीरियल।
ये वो नाउन है जिसके जरिए आप चीजें बना रहे हो, ठीक है, ये मटीरियल नाउन है। Forgiveness is a noble virtue. Forgiveness, माफ करना। कभी आपने देखा है माफ करना? कभी आपने माफ करने को टच किया है? नहीं ना बेटा, इट्स जस्ट अ फीलिंग। तो ये क्या है आपका? अभी तो किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्ट। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्चू क्या है? क्वालिटी। ये भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। The accused declare his innocence to the jury. Accused कौन हुआ? Accused वो हुआ जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। पर्सन, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आपने अपनी क्लास में अपनी टीचर को कहा है कि वो वाला जो मेरा फ्रेंड है, he has taken my pencil, so he is the accused one, ठीक है। तो ये आपका कॉमन कॉन्क्रीट नाउन है, आप उसको देख सकते हो। इनोसेंस यानी बेकसूरी, ठीक है, ही इज वेरी इनोसेंट, वो बहुत मासूम है, इसको आप नहीं देख सकते हो, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। ज्यूरी कौन होती है? कलेक्शन ऑफ जजेस, और ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। She bought her furniture at the flea market. Furniture क्या है? Collection of all the things that she is going to use in her house. तो ये आपका collective noun है। Flea market. Flea market क्या होता है बेटा? जैसे हमारा संडे बाजार होता है ना, इस तरह अंग्रेजों का बेटा फ्ली मार्केट होता है। तो ये क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन की कौन सी टाइप हो गई? कॉन्क्रीट, क्योंकि हमको फ्ली मार्केट नजर आती है, ठीक है। आई डिड नॉट गेट गुड स्लीप एट नाइट। स्लीप क्या हो गया आपका? स्लीप हो गया आपका कॉमन नाउन, कौन सी टाइप? एब्स्ट्रैक्ट। अब स्लीप बेटा, यू कैन स्लीप, बट यू कैन यू फील इट? फील इट, टच योर स्लीप, टच एनीबडी एल्सेस स्लीप, नहीं ना। तो दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कॉमन नाउन। लाइकवाइज नाइट क्या है? नाइट मेरी जान आपका कॉमन नाउन की कॉन्क्रीट टाइप है। नाइट को आप देख सकते हो, रात को आप देख सकते हो। रात जब होती है तो आपको पता होता है कि ये रात हो गई है, तो ये कॉमन नाउन की कॉन्क्रीट टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट इज एन पेंटेड द वॉल ग्रीन। एनी क्या है? एनी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल लेटर में है, नाम है। उसके बाद वॉल क्या है? वॉल को देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो कॉमन की कॉन्क्रीट टाइप है। सारे नाउन्स हमने टाइप्स की और उनको रीइंफोर्स किया। एक्सरसाइज सी I will do with you. Exercise C will pop up on the screen and you have to solve it with me. What is the question saying? The question is saying that you have to fill in the blanks with the nouns formed by the words given in the brackets. So let me start exercise C. All right. The question says fill in the blanks with the nouns formed from the words given in the brackets. ठीक है? First blank is there is a dash for an accountant in this firm. Vacant is the word and the noun is vacancy. Second is only fools are softened by. Flatter is the word and the noun is flattery. फ्लैटरी क्या होता है? मक्खनबाजी, मस्केबाजी, ठीक है।
तो सिर्फ बेवकूफ मस्केबाजियों में आते, आपर में तो नहीं आते। थर्ड सेंटेंस इज व्हाट डू आई हैव इन दिस मैटर, चूज, एंड द आंसर इज choice. What choice do I have in this matter? Fourth is he ignored the dash I gave him. अब यहाँ पर है advise with s. s के साथ advise होता है verb और c के साथ जो advice आप इधर लगाएंगे वो होता है noun. 5. He dashed during the experiment provided valuable insight to the team. और वर्ड है आपका ऑब्जर्व. आपने सिंपल इसको ऑब्जर्वेशन कर देना है, ठीक है. डैश इन टेम्परेचर इज एन डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड. इंक्रीज विल रिमेन एज इंक्रीज. इंक्रीज इज इन टेम्परेचर इज एन इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड. ठीक है. His dash of the invitation added to my disappoint. So his refusal of the invitation added to my disappointment. Disappoint लिखा हुआ है, disappointment. It is generally the dash of the drivers that leads to road accidents. ठीक है. It is generally the carelessness of the drivers that lead to road accidents. The government has made several policies to uplift farmers from poor. The government has made several policies to uplift the farmers from poverty. गुर्बत, ठीक है. Poor लिखा हुआ है वो adjective है. Poverty is the noun. The lawyer took dash for a few days of dash from the court. The lawyer took permit है, permission for a few days of absent है, absence from the court. So exercise C is also done. I have given you the answers. Exercise A was the very easy one. The very easy as an English teacher is a sin. Exercise A was the easiest one, right? Exercise B I have done with you. Exercise C I have done with you. We have revised, reinforced, recapitulated and all the re's that you can do as far as noun is concerned. And we have done the reinforcement as well by doing 2 exercises. ज़हन नशीन कर लो. Pre-9 में हो. Pre-9 में आने के बाद ये सारे काम इसलिए हमने किए हैं कि आपके 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव पेपर में सब शामिल होंगे. भूलना नहीं, अच्छे से याद रखना. मुझे तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखना, नमाज का एहतमाम रखना और अपने अम्मी अब्बू के साथ बिहेव करना. अल्लाह हाफ़िज़.